नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। यूक्रेन पर रूस के संभावित हमले की बात को लेकर तनाव का माहौल है। ऐसे में भारत ने अपने लोगों को यूक्रेन से वापस बुलाया है और भारत के बहुत से छात्र, आपको बता दें कि यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं। ऐसे में उन्हें जल्दी यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के लिए दो फ्रंट पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि तनाव बढ़ा तो भारत को दो मोर्चों पर अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ उत्पल वोरा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना जो कि सुरक्षा सलाहकार है, वो भी कुछ देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से अश्विन शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से कालू वघासिया भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। उत्पल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। एक्सपर्ट की अगर बात करें तो एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल इस संकट पर भारत ने अपना जो रुख है वो बेहद ही संतुलित रखा हुआ है। वो अमेरिका और रूस के बीच में संतुलन बनाए हुए है। जल्पा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इतना पेचीदा और सेंसिटिव मामला है that when you see it from the international relations point of view or balance of power point of view or geostrategic, geoeconomic or political point of view, India is in a little, difficult situation. Not because, we are not confident of dealing with the situation, but because of the sensitivity that is involved. And that is the primary reason as to why हमको बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग इसके पर करना जरूरी है और करना पड़ेगा. That from one side, if you see the Russian viewpoint, they have a point, and if you see from the other side, from the American or the NATO point of view, they also have a point. And therefore, the countries which are supporting the either bloc or the power bloc, will have to make up their mind and probably side with them. But we cannot take openly, that kind of a, side of either the NATO or the American side, or even this side, with the Russian side. Because with Russia, we have almost, about 5 decades of, very, very strong, the economic, cultural, political, military, and diplomatic ties. So it's a perfect, the situation where Russia and India's relations, they always mattered in every international relation point of view. And therefore, considering the fact that even today, the 60 to 65% of, the Indian armed forces is dependent on military hardware and Russian support, we have to be very careful. Especially when the China situation that has emerged in the recent past, in last 2.5 years, and the way China is creating problem on the entire LAC, and also जिस तरह से Pakistan or China collusion with Afghanistan background in our backyard has also become a reality of life. We have to be very careful, because S-400 as such, it's a very necessary system for futuristic warfare with China, or the conflict in case if it happens with China. And America in any case is pressurizing us not to go for the S-400. However, we have decided to go ahead with it. And I'm considering the fact that in any multilateral forum or multinational forum like United Nations, if Russia goes ahead with the invasion, this matter will definitely come in the United Nations. And if the NATO countries or the USA, if they use the veto, or if the voting takes place, then will India decide to abstain again, like what we did just in the recent past, or will take sides? That will have to wait and watch. But either side, there is a problem. On the other side, from the American front of view, point of view, we are now nurturing a very, very strong Indo-US strategic ties. We have signed very, very sensitive agreement for supply of military hardware. Even when President Trump was in Ahmedabad, we have signed almost 10 to 12 billion dollars worth of, the military hardware supply. And Apache, Chinook, and all, they've already started landing up on the Indian soil. And we are also using them effectively against China and our potential enemy. So therefore, considering the fact
that the India is also part of the of the Quad, and though India is very very cleverly and very जी nicely in a diplomatic manner, we have said that the Quad is not against a particular country, and therefore we have refrained to name China against that. But against any kind of potentiality with China, we need either the American or the Russian support. And I have said in your previous program also, जी make no mistake that Mr. Putin and Mr. Xi Jinping, that is America, the China and the Russia, they both are on the same soil. They are doing a perfect tango with full synchronization. And therefore, if China and Russia, either way, from the economic point of view or from the technological provisioning of the know-how point of view, if they shake hands and if they come close, then we have more worries, that we'll have to take जी care of that. So India is in a very, very precarious situation at this moment of time. And the economic angle also, we'll have to discuss, as to how the inflation will go up, how the oil prices will go up. If that go up, our Indian economy is basically oil-based economy. And in that kind of a scenario, how India will, take care of the rising oil prices. The crude has already touched 95 barrels, $95, per barrel. And if it goes or crosses 100, 105, then it will be a tough call on the Indian economy. So जी I'm sure the concerned ministries, they must be watching this, the entire situation developing like a hawk, and they must be, also counterbalancing the situation. But at this moment of time, the situation is very fluid, and this is from the international relations and the effects point of view. Now जी let me touch upon, just in a very brief manner, and if you need me, I will further amplify it. जी But in a very, very brief manner, why, it's a very difficult situation to deal with. Because both are right and both have a point of view, and therefore we have to decide as to how do we do the middle path walking. See how बिल्कुल any war or any this kind of a conflict is always have a geostrategic perspective or a historical perspective. Now what Mr. Putin is trying to say is that in 1991, when Mr. Gorbachev met the US president and vice president, as per the Russian the narrative, the is made very clear that the जी promises were made to Gorbachev that NATO will not expand on the eastern boundary and it will not pose a threat to Russia. Now, Americans and the NATO countries and the US ambassadors of that time, they flatly refused. But Mr. Putin, in the latest Munich conference in 2008, very clearly and very boldly and very sharply, he questioned the US, president and the US, the government and the जी NATO, the organization, that where are your promises which you made to us? And now you have come as close. If I allow you to come to, Ukraine, after all the 10, or the 11, the republics that you have positioned your NATO troops and the military hardware in those republics, now if I allow you to come to Georgia and Ukraine, you are virtually sitting on my border. And if I allow you to sit on your border, you are 100 kilometers away from St. Petersburg. So what is the surety that tomorrow you will not target St. Petersburg and roll your tanks and artillery into Russian territory? So if I allow you that, then I am a coward. And I will not repeat the history or the mistake that the history has made and what Mr. Gorbachev has made. And I am going to come out of the mistake made by Mr. Gorbachev and Mr. Boris Yeltsin as the first president of Russia. I am not going to trust you. Whereas if you see and the most important part today is that Ukraine, even as of now, whilst you are conducting the debate, Jalpa, जी Ukraine is not a NATO ally. And Ukraine has officially not joined NATO. So Mr. Putin is saying, if Ukraine is not a part of NATO, what gives you the moral right to support Ukraine? जी बिल्कुल And if my sovereignty right is threatened, I as a president of the Soviet or president of the Russia, I am fully empowered to take certain actions. To give you an example,
If China tomorrow positions the missiles in Nepal or maybe Bhutan or Myanmar, will India keep quiet? If our sovereignty is threatened, we will definitely, create problem. This is the predicament from which the Putin is going through. Therefore, he is already taken over Crimea, and Crimea annexation has taken place. Minsk Accord was taken place in 2014, and the second part of Minsk Accord in 2015. But no, not a single party is honoring this accord, Minsk Accord. Neither they are, honoring the promises made by the NATO and the Americans to the Soviet leaders. So, Putin is empowered the way he is behaving, and the way from three sides, that is Belarus, the western part of the Ukraine, and also the Black Sea, where he has positioned the Russian naval ships, 20 of them, and also blockaded in full-fledged manner the Ukrainian Navy as well as the Ukrainian trade, interests. So he is fully prepared to go into action. And, the history teaches us that whenever you discard a history in military matters, you are bound to, repeat those mistakes. And Putin does not want to do it. Whereas, see the Americans, how they are, creating a war hysteria and, the kind of situation they are creating. Look at the 40 to 45 years of history of Cold War. There has never ever, underline this word, never ever, even one instance has taken place where Americans and Russian soldiers have come face to face and they've fired even one bullet, not even one bullet. But they've always used the other country to, retain their interest. In this case, they are firing the, gun from the shoulder of the Ukrainians, and they are using Ukraine. America has stationed 3,000 troops, but not in Ukraine, but in Poland. So this is the whole issue, Jalpa, is not Ukraine. The whole issue is the economic potential of the Europe, and particularly Germany, and the Nord Stream 2.0 pipeline, gas pipeline, that is passing through, from Russia to Germany. And the Americans do not want Europe to go under the influence of Russia. And Russia does not want the Europe to go under the influence of the Americans. And therefore, even the NATO headquarters is in Luxembourg, which is, in Europe. So either the East Germany and West Germany, if they get, now they have unified. After unification of the Germany, we'll have to wait and watch as to up to what level Germany toes the line of either the NATO, or they are ready to make some kind of some kind of leeway to the Russians in operationalizing and utilizing this gas pipeline. So try and understand how difficult it is for India. The Indo-German, Indo-Russian, Indo-Russian-Chinese, Indo-Russian-American, all these international relations are, at stake. And therefore, what the question that you pose, that what will happen to the Indian interests. And that is why I'm saying that it's a very, very difficult diplomatic situation for India. And we have, you can't be every man's wife. But at the same time, in international relations, a situation has been created where neither we can annoy America or NATO countries, or neither we can be, we can offend Russians and if Russia-China relationship. Because, in future, against China, we'll definitely need Russia. And in the AUKUS, as well as from the Indo-Pacific and South China Sea, what Indian interests are there, that we need America also, and the NATO countries. So we have to, walk a very, very tight rope. And in the economic interest, is a different chapter altogether. जी बिल्कुल। अमृत जी, आपकी और भी यहाँ पर आना चाहूंगी। जानकार ये भी मानते हैं कि भारत खुद को दुनिया की प्रमुख ताकत बनाने के लिए भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के साथ ही NSG की भी सदस्यता चाहता है, इसीलिए वो यूक्रेन संकट के दौरान कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका या तो फिर रूस के साथ उसके जो संबंध है वो प्रभावित हो जाए। जी जल्पा, जिस प्रकार से अभी ये संकट
पूरी दुनिया के सामने यूक्रेन एंड रशिया, तो ये एक वर्ल्ड वॉर की चेतावनी है। परंतु जिस प्रकार से अभी जो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस समय में इस समस्या का हल जरूर होना चाहिए और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जी और इस उम्मीद में सही मानों में इस समस्या का हल होना चाहिए। अन्यथा नहीं हुआ तो बहुत भारी नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ सकता है और बाकी कंट्रियों को उठाना पड़ सकता है। लेकिन मेरी बात रखने से पहले मैं दो तीन चीजों पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो है कि ये नाटो क्या है। नाटो के बारे में जब तक हमको जानकारी नहीं होगा तब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा। नाटो एक सैनिक ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 अप्रैल 1949 में ब्रुसेल्स, जिसकी राजधानी हेडक्वार्टर है बेल्जियम के अंदर, ये जो कंट्रीज हैं 30 कंट्रीज है दुनिया के, जिसके अंदर अमेरिका, कनाडा और 28 दूसरे जो देश इसके अंदर शामिल है, ये यूरोपियन यूनियन के देश शामिल है। और इस ट्रीटी के अंदर ये लिखा गया है कि इस 30 कंट्री के अंदर कभी भी अगर सैन्य कार्रवाई की कोई भी जरूरत पड़ती है या किसी देश के ऊपर अगर अटैक होता है, तो ये अटैक की मदद करने के लिए ये 30 देश जो है इनको मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये 30 देशों के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 28 देश तो यूरोपियन यूनियन है, जो फ्रांस है, जर्मनी है और यूके है, और इसके अलावा हमारे दो जो देश हैं वो है अमेरिका एंड कनाडा। लेकिन इसके साथ साथ जो तुर्की है, देश इसके अंदर शामिल है, जो कि यूरोपियन नेशन में भी है और साथ ही साथ एशिया के अंदर भी है। तो इस प्रकार से 30 देशों को मिलकर के एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जब भी अगर कोई देश इसके अंदर तकलीफ में आएगा, परेशानी में आएगा, तो सारे देश मिलकर के उसकी मदद करेंगे। कोरिया का जब युद्ध हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है, वो गठन हुआ है 4 अप्रैल 1949 को इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है। और इसमें शुरू में ऐसे इनका जो प्रभाव था पॉलिटिकली प्रभाव था, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, कोरिया युद्ध हुआ और इसके बाद दूसरे युद्ध हुआ, इसके बाद जब जिस राष्ट्र को, जिस देश को इसकी जरूरत पड़ी, उनको मदद की गई। ये थी मेरी पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रशिया यूएसएसआर था, पहले यूनियन सोवियत रिपब्लिक ऑफ कंट्री था, और उस कंट्री के अंदर पूरा कंप्लीट कंट्री था। लेकिन 91 में जब इसका विभाजन हुआ, 91 में अलग अलग 15 देशों में इसका विभाजन हुआ, जैसे आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, लीबिया, और ये तमाम कंट्री, जो 15 कंट्री, रशिया भी शामिल है, यूक्रेन भी है, तमाम कंट्री जब अलग हुए, तो अभी समस्या का मूल कारण क्या है कि रशिया के साथ यूक्रेन की लड़ाई क्यों हो रही है? तो यूक्रेन के अंदर इंडस्ट्रियल इतना पावर है, इतना उसके पास कोल है, इतना उसके पास भंडार है। तो रशिया और चाइना, ये दोनों जो है विस्तारवादी कंट्री में माने जाने वाले कंट्री है कि जब ये 15 कंट्री में इसका विभाजन हो गया, तो इसके बाद उन्होंने शुरू से ही अपना दबाव जो पड़ोसी देश है उसको बना के रखा। जैसे कि यूक्रेन, आज मैं ये बात करने से पहले कहना चाहूंगा कि ये यूक्रेन मेरा देखा हुआ कंट्री है। मैं 95-96 के अंदर रशिया गया था, मॉस्को गया था, और मॉस्को के बाद उसके
बॉर्डर पे लगा हुआ जो सिटी है वो रोस्तो है। के 22 तो उसका वेपन सिस्टम का कोर्स वहां से मैं करके आया। और जिस प्रकार से ये यूक्रेन को इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, सबसे बड़ा अगर फायदा वाला कंट्री है तो ये है। तो जिस प्रकार यूरोपियन यूनियन ने ठान लिया कि यूक्रेन को हम नाटो कंट्री का देश बनाने जा रहे हैं, और यूक्रेन ने भी यही कहा कि नहीं हम नाटो कंट्री, जी तो ये रशिया को राज नहीं आया। रशिया ने इस जो 91 के बाद जब कोलैप्स हुआ, जब विभाजन हुआ, तो रशिया अपना अलग हो गया और 15 जो छोटे छोटे कंट्रीज थे जो अराउंड में इसके बेलारूस हो गया, लिथुनिया हो गया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, ये तमाम जो कंट्री इनसे अलग हुए हैं, ये मैक्सिमम नाटो कंट्री के साथ जुड़ गए। अभी नाटो क्या है? नाटो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैनिक संस्था है। ये सैनिक संस्था 4 अप्रैल 1949 को गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में था। ब्राजील जो ये ब्रुसेल्स के अंदर था, बेल्जियम। और यहां शुरुआत करने के बाद ये 30 कंट्रियों को इसके अंदर मिलाया गया था। तो आज जिस परिस्थिति में जो समस्या सामने आई है कि विस्तारवादी रशिया चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो कंट्री का सदस्य देश ना बने। अगर सदस्य देश बनता है तो रशिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जिस प्रकार से आज जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उस परिस्थिति को सामना करने के लिए यूएस का जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उन्होंने 7 फरवरी को मॉस्को के अंदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करी और उनके साथ में उन्होंने चर्चा विचारणा करी कि भाई ये जो है बातचीत करने से इसका हल निकल सकता है, तो इतना बड़ा युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बात जो है वो बात करके आ गए। इसके बाद हमारे जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के प्रेसिडेंट, ये दोनों भी उनसे रिसेंटली मुलाकात करके आए कि भाई इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी होना चाहिए। और रशिया ने जिस प्रकार से यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है, अगर दुनिया के नक्शे में हम देखेंगे तो यूक्रेन को अगर हम ईस्टर्न साइड से देखेंगे तो रशिया ने गोलाबारूद करके उनका जो सिटी है वहां पे अपनी तकरीबन 1 से लेकर के 1.25 लाख की आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है बॉर्डर के अंदर। उससे पहले भी 2 बार जब इसके यूक्रेन की शिकस्त हो गई और वायलेशन रूल्स हुआ, तो उन्होंने भी जाकर के उन्होंने बताया कि भी मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है और मेरे कंट्री के कई सिपाही मारे गए हैं, हमारे कई बिल्डिंगों का रशिया ने कब्जा कर दिया है अवैध, तो उनके सामने कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। से उसके है कि हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है कि अगर आप हमारे मेंबर बन जाते हैं तो पूरा एमओयू के अंदर साइन। जो नाटो कंट्री के मेंबर बनना चाहते हैं, आज की डेट में नाटो कंट्री के 30 मेंबर है और एक मेंबर जुड़ने से 31 मेंबर हो जाएगा। तो ये रशिया को गवारा नहीं हुआ कि जितना भी इंडस्ट्रियल हब है वो हब इसका चला जाएगा। और जिस प्रकार से आज रशिया ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो हमारे नाटो देशों ने भी यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, आप नॉर्थ में चले जाओ तो बेलारूस, वहां पे अपनी सेनाएं लगा दी गई है। अगर वेस्ट में चले जाओ तो पोलैंड में अपनी सेनाएं यूएसए ने लगा दी गई है। अगर थोड़ा सा साउथ में चला जाओ तो मालदोवा, जो रशिया उसके साथ मिला हुआ था, मालदोवा में भी अपनी सेनाओं को लगा दिया गया है। और साथ ही साथ अजीव सी और दूसरा जो है काला समुद्र यानी कि ब्लैक सी, वहां पे भी अपने यूएसए ने अपनी तमाम प्रकार की नेवी की तैयारी कर ली है कि जिस प्रकार से चारों तरफ से रशिया ने यूक्रेन को घेरने की तैयारी करी है, यूक्रेन को हराने की तैयारी करी है कि किसी भी वक्त अगर युद्ध छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गई और 7 फरवरी को
जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने भी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बता करके आया था और चेतावनी भी दी थी कि अगर किसी भी टाइम अगर आपने यूक्रेन पर हमला किया तो हम 40 देश मिलकर आप पर हमला करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया कि अगर आप किसी भी हिलचाल करेंगे तो पहले ही हमने आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है कि आपका जो भी एक्सपोर्ट है वो तमाम एक्सपोर्ट को बैन किया जाता है। तो उनकी वहां पे कमर टूट जाएगी कि जिस प्रकार से दुनिया के देशों में रशिया जो अपने सामान को एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट बंद हो गया और साथ ही साथ रशिया ने भी सामने से बोल दिया कि हम किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये यूएसए का सबसे बड़ा स्टेप उनके सामने लिया गया है रशिया को काबू में लाने के लिए। लेकिन पर लड़त साथ तो अगर साथ खास तौर अगर पर हम देखी देखें जाए तो कि जिस अमेरिका प्रकार और से चाइना के बीच ये ही मानी तमाम जा रही प्रकार है। की कहीं कार्रवाई ना की कहीं गई रूस है को समर्थन हो चाइना और का, या तो फिर अमेरिका का समर्थन देख लो यूक्रेन को, यानी लड़ाई तो वही दो देशों के बीच ही हो गई। फिर आपकी और यहाँ पर अश्विन जी आना चाहूंगी इसी बात से, क्योंकि यहाँ पर हम जब मुद्दा जिक्र होता है अमेरिका का और चाइना का, तब कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से कौन आगे जाएगा ये लड़त तो हम जानते हैं कि नंबर 1 की लड़त है। और शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं चाइना हर बार चाहता है कि मेरे समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ मैं आ जाऊँ, या तो फिर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि उसे किसी भी तौर पर आर्थिक नुकसान ना हो जिसका वो ध्यान रखे। अगर भारत देश की अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन के साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध है, और अगर रशिया की बात करें तो काफ़ी जगहों पर हमें रशिया के साथ भी संबंध हेल्दी रखने की जरूरत है, जिसके लिए भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि आगे हमारी नीति क्या रहेगी अगर तनाव बढ़ता है तो। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आई फुली एंडोर्स टॉक ऑफ आवर फर्स्ट स्पीकर। उन्होंने पूरा ब्रीफ में बताया कि इश्यू क्या है, ये जियोपॉलिटिकल इश्यू है। लेकिन मैं एक लेटेस्ट दे दूं, अभी जब अपना प्रोग्राम चालू हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था सीएनबीसी पे, बिकॉज आई एम अ स्टॉक मार्केट एडवाइजर, तो मैं वहां देख रहा था। तो अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि उनका एम्बेसी जो है रशिया का, उसने क्लीन बोल दिया कि वी वांट अ पीसफुल सॉल्यूशन, वी गो थ्रू द डायलॉग, यानी डिप्लोमेटिक वे पे जाएंगे। और जहां तक नुकसान का सवाल है, नुकसान लास्ट 10 दिन में इंडिया को 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गया। अब एक थोड़ा ब्रीफ बता दूं कि ये इश्यू जो सर ने बताया कब चालू हुआ था, 2014 में, जब रशिया ने पहली बार यूक्रेन की एक जगह है जो क्रीमिया करके है, जहां पेनिसुला, जो सर ने बोला पेनिनसुला है, जो इंग्लिश में पेनिनसुला का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, उस जगह पे उन्होंने एनेक्सेशन किया, वहीं से इश्यू चालू हुआ है। अब जो ये मेन इश्यू है, रशिया क्यों इसके पीछे पड़ा, इसकी वजह ये है कि यूक्रेन के पास बड़ा जियोग्राफिकल सोर्सेस है। जैसे अमेरिका हर जगह दिखता है, उसने गल्फ वॉर में भी इंटरेस्ट लिया, हर जगह इंटरेस्ट इसलिए रहता है कि जहां भी उनको पोटेंशियल दिखता है वो वहां अपना इंटरेस्ट लेता है। और सर ने बताया ऐसा, वो बिहाइंड द स्क्रीन लेके इंटरेस्ट रहता है। तो इंडिया का सवाल है, अभी हमको ये तय करना है, क्योंकि यूक्रेन का इकोनॉमी इतना बड़ा नहीं है, उसका $180 बिलियन का जीडीपी है, इंडिया का मोर देन 2.9 ट्रिलियन का है, तो हमारे से तो वो कहीं पीछे है। और रशिया का सवाल है, रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल एंड गैस, उसका सबसे बड़ा खरीदार है यूरोप, 40% यूरोप का जो ऑयल है वो रशिया से आता है, 20% गैस वहां से लेती है। अब यूक्रेन हाल जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा यूरोप को। लेकिन हम ग्लोबलाइजेशन हो गए, हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो यूरोप में हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट काफी कंपनियों का रशिया में भी हो रहा है, और रशिया से हम कई चीजें इंपोर्ट भी करते हैं। तो जहां तक व्यापार का सवाल है, इकोनॉमी का सवाल है, अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, इंडिया हमेशा, क्योंकि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी, तो इसको इफेक्ट आता ही है, और वो एडवांस में डिस्काउंट करती है। मार्केट ने 10 दिन में अपने 8 लाख करोड़ गवा दिए। लेकिन आज जैसे जैसे न्यूज आ रही है, और जहां तक मैं इंडियन गवर्नमेंट का चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को ये साफ करना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर जो है अमेरिका के साथ है, हमारा पुराना इतिहास जो है रशिया के साथ है, लेकिन हम इतिहास को बिगाड़े बिना फ्यूचर कैसे आगे करें, तो इंडिया को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि ज्यादातर कोशिश हमारी ये होगी कि हम इंटरफियर हुए और इनको बताया कि भाई वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन, पूरे विश्व को इफेक्ट होगी इसकी। तो हमारे यही मैसेज होना चाहिए, जो चीज हमारे साथ अभी चाइना और पाकिस्तान की चल रही है,
वो दोनों का यही है। जैसे वो बोलते हैं कश्मीर हमारा है, ऐसे ये जैसे ही 1991 में अलग हुआ तब से रसिया बोल रहा है यूक्रेन हमारा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जैसे हमारा चल रहा है। अगर ये इश्यू एमिकेबली और बायलैटरल टॉक से खत्म होता है तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हमको भी मिलेगा। तो वो मैसेज जाएगा चाइना को, पाकिस्तान को, कि नहीं हमको भी इंडिया के साथ सीधा रहना पड़ेगा। जी, तो एक ही मैसेज है। लेकिन काफी ऐसे देश है जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये तनाव कायम रहे, जैसे कि अगर चाइना की बात कर ले। चाइना तो चाहता ही है, चाइना इनडायरेक्टली हमारा बहुत बड़ा बिजनेस में राइवल है और वो हमने देखा है हर बार। जैसे ये देखो चाइना ने पूरे वर्ल्ड को एक छोटा सा मतलब डिसीजन दे दिया और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को खराब कर दिया उसने, लेकिन फिर भी इंडिया जल्दी से उभर रहा है क्योंकि इंडिया के पास लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मोर देन 60% इंडिया का पॉपुलेशन बिलो 30 है आज की डेट में, तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमको है। लेकिन अगर हमको एडवांटेज लेना है, बीच में भी हमको फायदा हो रहा था, मैंने बताया आपको क्रूड ऑयल, वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल। तो जब कोविड के टाइम पे क्रूड का भाव ऑल टाइम लो हो गया था, लेकिन फिर भी हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाए और हम पेट्रोल डीजल का भाव नीचे नहीं कर पाए। आज की डेट में क्रूड का भाव होने जा रहा है $100। अगर ये $100 के पार हो जाता है मैडम, तो पेट्रोल डीजल का भाव क्या होगा ये हमको 11 मार्च को पता चल जाएगा, जो 5 राज्यों के इलेक्शन है उसके बाद का। तो मेरा एक सीधा मैसेज है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट शुड क्लियर द स्टैंड और इस देश को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, देश की इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी और यहाँ पर कालू जी मैं आना चाहूँगी। यहाँ पर भारत की बात करें तो कच्चे तेल के मामले में हम आयात पर काफ़ी निर्भर हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों देशों के बीच में अगर तनाव शांत नहीं हुआ तो भारत को चाहे वो इकोनॉमी की दृष्टि से देखे या ट्रेड की दृष्टि से देखे, बहुत ही बड़ा नुकसान होने की संभावना है। देखिए, जब भी दो नेशंस के बीच, खास करके दो बड़े नेशंस आपस में टकराते हैं, वॉर होता है, तो पूरी दुनिया को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। भारत भी उसमें से बाकात नहीं है क्योंकि हम काफी सारी चीजों पर रशिया पर डिपेंड है, चाहे वो डिफेंस की बात हो, डिफेंस सेक्टर की बात हो या ऑयल की बात हो। मसला यहाँ पर वो हो गया है कि यूक्रेन जो अभी जहां पर नेचुरल गैस का बहुत बड़ा रिसोर्सेस है उसके ऊपर नजर बना के रखा है रशिया ने। रशिया की बात भी जायज है, पहले सोवियत यूनियन में जो 15 कंट्रीज थे वो 1991 में अलग अलग हो गए। जैसे हमारे आजादी के बाद इंडिया में से पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ, वैसा ही कुछ सिनारियो वहां पर है। तो यूक्रेन के अंदर भी आज जो लोग रहते हैं वो बेसिकली रशियन लोग हैं, रशियन भाषा बोलते हैं। और उसमें जैसे काफी सारे डॉनबास करके एक रीजन है जहां पर अभी रशिया का जमावड़ा है, वो रीजन में खास करके लोग रशियन सेपरेटिस्ट लोग रहते हैं, जो जिन लोगों की मांग है कि यूक्रेन रशिया में चला जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से कुछ साल पहले क्रीमिया करके जो पार्ट है, स्टेट ऑफ क्रीमिया, उसको रशिया ने अपने पास ले लिया था। वहीं पर अभी डॉनबास की बात है तो उसको भी लेने की बात चल रही है। तो खास करके अभी मसला है कि यूएस और रशिया आमने सामने हो गया है। यूक्रेन को यूएस का बैकअप है, रशिया को चाइना का बैकअप है। दोनों बड़े कंट्री है और दोनों की इकोनॉमी अभी उसके पर पूरा डिपेंड रहते हैं। बहुत सारी कंट्री है, उसमें भारत भी है। तो भारत को यहाँ पे जो रोल डिप्लोमेटिक रोल बजाना है बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो इस तरफ भी नहीं जा सकते, उस तरफ भी नहीं जा सकते, उसको बहुत ही न्यूट्रल रहना पड़ेगा यहाँ पर। और जहां तक वॉर की बात है, काफी सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वॉर होना बहुत नजदीक है, 16 तारीख को या 17 तारीख को शायद हो जाए। पर मुझे लगता है कि पुतिन अभी बहुत डिफेंसिव है, खास करके जो हाल ही में उसके साथ हुआ है, उसको G8 देशों में से निकाल दिया गया। तो अभी G7 है, उसमें से उसको निकाल दिया गया। तो उसकी वजह से और काफी सारी उसकी जो इकोनॉमी अभी वो डाउन हो रही है, उसकी वजह से वो बहुत चिंतित है। मुझे नहीं लगता कि वो ऑफेंसिव होके बिल्कुल ही अटैक कर देंगे। तो 62 मिनट का बात चल रहा था, अभी एक्सपर्ट ने बोला कि बाइडेन और पुतिन के बीच 62 मिनट का बात हुआ, लंबा बात हुआ, उससे रिजल्ट नहीं निकला। उल्टा अमेरिका ने धमकी दे दी रशिया को कि अगर आपने यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की तो हम नाटो देश मिलकर आपके पर हमला कर देंगे। तो नाटो अभी आप समझिए कि रशिया को क्या प्रॉब्लम है, यूक्रेन अगर नाटो में चला गया, तो अगर यूक्रेन नाटो में चला गया तो नाटो का जो 30 देश है वो 31 हो जाएगा और 31 लोग उसके पर अटैक करेगा। क्योंकि जब नाटो का नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसका जब गठन हुआ था, तभी उसका मोटो ही वही था कि किसी एक पर हमला होता है तो वो सभी के पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलके करेंगे। तब 12 देश थे, अब 30 हो गया। अब 31 जो देश है यूक्रेन, उसको जोड़ने की बात चल रही है। तो 31 देश अगर हो गए तो रशिया के हाथ यूक्रेन कभी भी नहीं आएगा। इसलिए वो अभी
विरोध करे यूएस का, उसने यूएस को साफ कहा है कि आप यूक्रेन को नाटो से दूर रखिए, उसमें आप इंटरफियर मत करिए। लेकिन यूएस करेगा ही करेगा, क्योंकि जब बाइडेन ने शपथ ली थी तभी उसने रशिया का जिक्र किया था। उसने साफ बताया कि रशिया ने जो यूएस के इलेक्शन थे उसमें इंटरफियर करने का कोशिश किया था। उसका विंड सोलर यूएस पर अटैक किया गया था। जब यूएस की आर्मी अफगानिस्तान के अंदर थी तब तालिबानियों के साथ मिलकर रशिया ने यूएस की आर्मी पर अटैक करवाया था। यानी दुश्मनी बहुत साफ है, जाहिर है। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक फायदा लेने की कोशिश करेगा यूएस। दूसरी बात है कि जो आप यूक्रेन की अगर जियोग्राफिक परिस्थिति समझिए तो ज्यादा पार्ट उसका यूरोप में है, और उसका जो नेचुरल गैस का जो सबसे बड़ा रिसोर्सेस है वो यूरोपियन यूनियन में चला जाता है। तो रशिया चाहता है कि वो कैसे भी करके अपने पास हो जाए जो रिसोर्सेस है वो। इसीलिए अभी लड़ाई बहुत ही मतलब उसका रिजल्ट हल निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां फ्रांस और जर्मनी के कॉन्सुलेट और उसके लोग उसमें मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका सुखद अंत होगा। कम से कम वो वॉर तक नहीं जाएगा, और वॉर तक जाने में रशिया को काफी बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि पुतिन इस बार एग्रेसिव मोड में नहीं आएंगे। हालांकि हर एक कंट्री जब ऐसी बात आती है तो एग्रेसिव बताते हैं कि मैं एग्रेसिव। 60% जो उसकी आर्म फोर्स है, सैनिक है रशिया के, वो यूक्रेन के चारों तरफ उसने रख दिए है। पूरा सबमरीन, मिसाइल्स, न्यूक्लियर सब जत्था वहां पर है। लेकिन एक दिखावा है। मुझे नहीं लगता कि रशिया और पुतिन को ऐसा स्टेप उठाएंगे जिससे उसकी इकोनॉमी को और असर होगा और ग्लोबल लेवल पर उसकी और शर्मिंदगी होनी सहनी पड़े आगे जाकर। जी बिल्कुल। अमरुल्लाह जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी जल्पा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज रशिया ने चारों तरफ से पूरी दुनिया को प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से उसने ब्राह्मोस मिसाइल को बेलारूस और उनके जो सिटी है बॉर्डर एरिया के अंदर जहां पे उन्होंने लगाया है, और जिस प्रकार से दुनिया को लग रहा है कि जिस परमाणु जो शस्त्र वाला मिसाइल है, और आज हमारे जो 30 देश है, 30 देशों के अंदर 3 ही ऐसे कंट्री है, यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन, जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं। और ये परमाणु शस्त्र का वहन करने वाली मिसाइलें उन्होंने ये यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दी है। तो एक चिंता का विषय है। और दूसरा विषय ये है कि बीइंग ए डिफेंस एक्सपर्ट में आप सब लोगों को उजागर करना चाहता हूं कि अगर किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अगर लड़ाई का अंजाम होता है तो चाइना ने पहले से उनको करने के लिए बता दिया है, और इंडिया इस पोजीशन को न्यूट्रल मान के चले हैं कि यूएनए के अंदर जब बातचीत का मसला चला था, सारे लोग ने वोटिंग किया, लेकिन इंडिया ने न्यूट्रल रहने की इजाजत मांगी कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम वोट नहीं करेंगे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार से ये होता है तो हमने रशिया के साथ S-400 मिसाइल जिनका हमने सौदा किया है, S-400 मिसाइल चाइना ने भी मंगाई है, लेकिन नाम S-400 है। चाइना मिसाइल टेक्नोलॉजी का मेंबर नहीं है, इंडिया उस मिसाइल टेक्नोलॉजी का मेंबर है, मिसाइल को खरीद सकता है। चाइना को नाम S-400 है, लेकिन सप्लाई किया गया है S-300। जिस प्रकार से ये जो रणनीति रशिया ने अपनाई है, दुनिया के देशों को बताया कि अगर तुम 30 देश मिलकर के भी मेरे पर अटैक करोगे तो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन अमेरिका ने पहले ही उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रशिया की कमर आधे से ज्यादा टूट चुकी है। कारण कि उनकी जो रूबल है, ये रूबल के द्वारा दुनिया के किसी देश से वो अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं। व्यापार अगर WTO संधि के अंदर आप शामिल है और अगर यूएसए ने इसके ऊपर प्रतिबंध लादित किया है तो उनको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने बेशक दुनिया से बंद कर दिया है, लेकिन जो एक्सपोर्ट करते थे करोड़ों और बिलियन डॉलर को जो पैसा प्राप्त होता था, आमदनी तो उसकी बंद जरूर हो जाएगी, लेकिन
भारत के लिए सबसे बड़ी अगर सद बात ये है कि अगर लड़ाई होती है तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम चाइना उसके साथ मिला हुआ है, और S-400 मिसाइल की जो डील रशिया के साथ की गई है, हमारा सबसे पुराना मित्र और वफादार साथी अगर कोई है तो रशिया है। हमारी भारतीय एयरफोर्स के अंदर जितने भी एयरप्लेन है वो तमाम, चाहे वो सुखोई हो, जितने भी MiG-21 हो, MiG-29 हो, तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट हमने रशिया से खरीदे हैं। अगर थोड़ी सी नजर हम घुमाएं कि जितने भी टैंक हैं, जितने भी आर्मामेंट है, तमाम प्रकार की गने, ऑलमोस्ट 70% आर्मामेंट, चाहे वो फील्ड क्रूजर गन हो, वो टैंक गन हो, प्रकार की गने हमने रशिया से खरीदी हैं। तो अगर भारत न्यूट्रल रहता है और दोस्त को मदद नहीं करता है तो उसका खामियाजा हमें जरूर भुगतना पड़ सकता है, ये मेरा मानना है। और आगे आर्थिक तो प्रतिबंध है ही, लेकिन साथ साथ डिफेंस डील जो हमने उनके साथ करी है, बिकॉज हम अभी इस प्रकार से दुनिया में आगे बढ़ता हुआ देश, और दुनिया के अंदर अगर मैं कहूं तो चौथे नंबर की आर्मी आज भारत के पास है। 13-14 लाख की आर्मी है और 10 लाख रिजर्व है, यानी कि 24 लाख की आर्मी पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है कि भारत के सामने अगर किसी ने आंख उठा के देखी तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी पड़ोसी देश ने अगर हिमाकत करी कि भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत भी परमाणु देश है। भारत के पास अनेक परमाणु मिसाइलें हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आज दुनिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई भी तोड़ नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी रडार के अंदर नहीं आती है, ये स्टेल्थ मिसाइल है, और स्टेल्थ मिसाइल के द्वारा यहाँ भारत में बैठे बैठे 4 से 5 हजार और 6,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के घर को हम तबाह कर सकते हैं। इतनी हम पावर रखते हैं, हमारे पास इतनी वो ताकत है। और सबसे बड़ा, अगर चाइना के साथ हमारा अगर गलती से कभी युद्ध हो जाता है तो हमारी सेना का मनोबल इतना ऊंचा है कि आज चाइना के पास कोई भी सैनिक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं है। आज उसके 3 बड़े से बड़े कमांडर ये इनक्लीमेंट वेदर के कारण मारे गए हैं, बीमारी के कारण मारे गए हैं, और वहां पे उनकी एम्बुलेंसें चल रही है। उनके कई लोग इस वेदर का सामना नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे विकास बटालियन हो, लद्दाख स्क्वाड हो या दूसरी जितनी भी बटालियन, वो इस के सामने लड़ाई लड़ने के लिए है। चाहे 2 साल उनको रखा जाए, लेकिन वो टस से मस होने वाले नहीं है जी। अगर सेटबैक चाइना को है, पीछे हटने का कारण अगर कोई है तो यही कारण है कि इतनी ठंड के अंदर, जहां पे -40 डिग्री से लेकर के -60 डिग्री टेम्परेचर, जो सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पे मैं खुद 2 साल रह करके आया हूं, मुझे पल पल की जानकारी है उस एरिया के बारे में। तो उस हालत में जवान किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, अपनी जान की बाजी लगाने तैयार है। तो आज इस प्रकार से युद्ध का माहौल खड़ा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रशिया को इस हालत में सेटबैक करना पड़ेगा। इंटरनेशनल जो अथॉरिटी है, तमाम अथॉरिटी उसके अगेंस्ट में है, और साथ साथ महान कंट्री है, उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए हुए हैं। भारत न्यूट्रल है। अगर रशिया का साथ देने वाला कोई कंट्री है तो ओनली चाइना एंड पाकिस्तान हो सकता है। इसके अलावा कोई भी कंट्री रशिया का साथ देने वाला नहीं है, और उसको मालूम है सोच समझ के रुख रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ सैन्य की नहीं है, बात यहाँ पर इकोनॉमी की भी आती है, ट्रेड की भी आती है, और लॉन्ग टर्म जो हमारा गोल है वो भी आता है। उत्पल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम किसी देश की बात करते हैं या फिर 2 बड़े देशों की लड़ाई की जब भी मसला होता है, तब कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन
ये दो चीजें यहाँ पर आई जाती है। और इसका सबसे बड़ा शायद संबंध ये भी है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसका जो प्रभुत्व है वो देशों पर बना रहे या दुनिया पर कायम रहे, और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि नंबर 1 की पोजीशन उसे हासिल हो। यानी सभी, अगर दोनों पक्षों की ओर से बात करें तो दोनों ही चाहते हैं कि कैसे एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं व्यापारिक नुकसान हो, जो हर एक देश को बखूबी समझ में आना चाहिए। जल्पा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब उसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। But I do not want to go into the rhetoric, because that is not my professional subject on that. So let me come down to the basic facts. At no stage, underline this word, at no stage, any of the US or any of the NATO country has ever threatened Russia with a military action. The exact word that has been used is that we will take appropriate and suitable swift measures and preferably economic sanctions, which will be unprecedented in nature. That is it. Therefore, to say that, the Americans and NATO countries will go into, direct military conflict with, Russia, it is, dreaming like, maybe a blind man. This is out of reality. Come out of it. आज का इतिहास देख लो, आज सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स, Americans and Russians have never gone to war, but they've only done posturing. Though, therefore, both the side have, deployed their, weapons and nuclear bombers and, the armed forces, but they have never come into the direct confrontation with each other. So much so, Jalpa, that in Syria, when both the countries, they had deployed their armed forces, they had earmarked a particular air, identification zone. And when Russian fighters used to, take off, the intimation used to be given to the Americans. And when Americans, used to fly, the identification was given to the Russians, so that there is no fratricide and that both do not shoot down each other's jet. And that is how the mature nations, they behave. It is not that, where the nuclear weapons are for strategic deterrence. It is not for fighting war. You don't go to war, the superpowers, they don't fight military war. Then the purpose of being a superpower is lost. And therefore, do not underestimate the, like what I have said. Putin is being driven to this kind of a situation because the only thing, what does Putin want? He just wants a legal guarantee that, the way you have fooled us, the Russia, and the way you have humiliated us from 1991 to 2010 and maybe say 2014, we will not take that lying down, period. And now you see how Russia and the China, they are playing their game. Putin has at no stage he has said that I am going to invade Ukraine. He said I am only doing military maneuvers and I am doing military exercises. At no stage I am telling you that I have any intention to invade Ukraine. So therefore Putin and the Russia is very clear. Now prove the Russia and the Russian armed forces wrong. You cannot do it. But at the same time, look at the clever game that Russia and China, they are playing. Today's America is not yesterday's America. And today's America is also worried about China's rise and displacing America from world's #1 economy and #1 superpower status. So therefore it's a duo, that is, the tango, this is being played by Russia and China. Pin down America in the Europe. And China will pin down, in the Indo-Pacific and South China Sea, and they will execute, problems for Taiwan and Hong Kong. So imagine a situation where America and NATO, they have to fight two-front war, they cannot do it. And that is the exact scenario what China has done with India. They have divided the Indian military might into two-war situation. So therefore, what Russia is doing to Ukraine, willy-nilly, whether we like it or not, our military and nationalistic ego will not permit us to believe that. But the fact of the matter is that China, with its, ulterior motives, they have divided the Indian military might and economic might into two wars or a two-front scenario, and at the same time make us committed for a longer duration. Therefore, keep draining out India. The same scenario is being enacted by Putin and Xi Jinping in Europe and in the South China Sea and the Indo-Pacific region.
that commit, the national might of the USA and the NATO countries on two fronts. It's a very, very dangerous, clever, and a shrewd game that is being played. Russia has not fired one bullet. He has said, and today you see the game of deception that is being played. From one side, he is amassing the forces. The other side, the Russian Defense Ministry has made a statement that our troops are heading back to the bases. But the Ukraine and NATO countries have said that don't believe Russia. They are playing a very clever deception game. So, this is how, take the history and historical perspective, whether it was Libya, whether it was Syria, whether it was Turkey, whether it was Kurdistan, whether it was Iran, whether it was Iraq, or whether, any other place, Russians and Americans have never confronted each other directly. And 50 years of Cold War after post-war, they've never fired a bullet at each other because they are superpowers. One minor mistake on the other side and then the balloon can go up in a very uncontrolled manner. And they have checks and balances so that this kind of brinkmanship do not, convert into a very nasty situation. And the Russia and America, they are not like Pakistan and Afghanistan. And similarly, like the Russia, don't underestimate. They have their checks and balances in place. They exactly know what they are doing. This is exactly called brinkmanship in a diplomatic term, and in that, who blinks first. And mark my words, I'm telling you. And we will see as how situation develops. There will be some kind of a leeway will be given to Putin, because Donbas region and Donetsk region is already controlled by the Russian separatists and mercenaries. And don't be surprised if in the Kyiv, the Russia has already penetrated their own forces, the mercenaries and the separatists, to probably topple the Ukrainian government. There could be a possibility. And therefore, the Russian president can be toppled and Russian separatists may take over Kyiv or part of the eastern Ukraine. And thereby they will be supported, externally, by the Russian forces by giving, the way they washed off their hands in the Minsk Accord in 2014-2015. After Crimean annexation and Donbas annexation, Russians played the same, record that we have nothing to do with this. We are not involved. Russian armed forces have not fired even a bullet. This is internal matter of Ukraine. And today, the Donbas and Donetsk region is under the control of Russian separatists. And Crimean annexation has also taken place. World did not say a word. United Nations did not say a word. Putin walked away with it. Similarly, in Georgia, Putin annexed two regions of Georgia. And Russia and the Georgian president was toppled. And Georgian President Shekshvili is now a history. He's become a past. Therefore, when world powers play the game, there are certain leeways already earmarked. So Putin, when he's stubborn and he's arrogant, don't worry about sanctions and all that. You think Russian ministries have not taken this into consideration? The Russians are naive. Russians are, they are the world masters of this kind of, the information warfare. And this kind of a game that is psychological warfare game that is played by Americans and the NATO countries. Russians alone and the Soviet Union, they withstood NATO and 31 countries. And still, Russia poses the biggest threat to the NATO. And that is why NATO is existed. Otherwise, where is Warsaw Pact countries? Warsaw Pact countries have already collapsed. But still, NATO countries are worried about Russia. Even today, Russia is the biggest nuclear power, even more powerful than America. This is factual truth. Let anybody go into the details. So Russian nuclear arsenal is bigger than American US nuclear arsenal. So let's not live in rhetorics. Let's face the facts. And therefore I am saying this, that Putin will be given some kind of a face-saving mechanism by the German Chancellor, Russia, the French President, and even with the connivance of the US, that they will have a limited the success, they will have limited annexation, and Putin will be happy, NATO will be happy, Europe will be happy, and China will also be happy. But at this moment of time, America and NATO cannot allow the China and Russia to come so close
and start managing the strategic affairs of the world, because it's dangerous. Today's China is not yesterday's China, and today's America is not yesterday's USA, that it can play that kind of a decisive role. America is weak today. And if America has to open up two fronts in Indo-Pacific, in South China Sea, and also in Europe against Russia and China, they are in a very difficult situation. Let's come to the reality. Let's call spade a spade. Therefore, let's not do worshipping of US. It's not correct. The professional analysis and professional analysts should stop taking sides of any country if you want to have a neutral analysis. जी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है, अब मसला यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत का ये भी आता है, क्योंकि अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेडिकल हमारे जो छात्र वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर तनाव के माहौल को लेकर जल्द से जल्द उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, ऐसी एडवाइजरी तो अभी बाहर कर दी गई है। दूसरी ओर अगर हम भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक संतुलित रुख रखने का भारत ने उचित समझा है, जिसकी काफ़ी सारी वजह भी है। वजह ये भी है कि जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो क्यों भारत को किसी एक का ही स्टैंड लेना चाहिए, अगर लेते हैं तो फिर उसका असर क्या होगा। अब यहाँ पर मसला सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं है, मसला यहाँ पर दरअसल अमेरिका और चाइना का है। रसिया की बात करते हैं, रूस की अगर हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं तो चाइना जिसे सपोर्ट कर रहा है, अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसके पीछे है, मतलब उसे सपोर्ट कर रहा है। चाइना ये चाहता है कि कैसे भी करके वो कहीं ना कहीं अमेरिका के व्यापारिक संबंध की बात कर ले या दूसरे संबंधों की बात कर ले, वो कैसे दूसरे देशों के साथ खराब करवा दे या फिर कैसे अमेरिका को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो जाए। अमेरिका की बात करें तो कहीं ना कहीं वो समझ तो रहा है कि ये चीन की चाल तो हो सकती है कि कैसे नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई दरअसल नंबर 1 की है। भारत देश की बात करें तो कूटनीति के बारे में हमें सोचना तो होगा, लेकिन शायद स्मार्टनेस उसी में है कि कैसे हम संतुलित रुख ही रखें कि जिसकी वजह से ना हमारी यूक्रेन के साथ जो भी व्यापारिक संबंध है या दूसरे और से संबंध है वो खराब हो, और ना ही रसिया के साथ। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मसला सिर्फ और सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई तक नहीं है, लेकिन मसला कुछ और भी है। अब देखना ये होगा कि आगे दूसरे देश की बात करें तो कौन से स्टैंड लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए तो कहीं ना कहीं ये तनही चाहे एक हद तक बड़ी भी थी, लेकिन कोई भी इतना बड़ा रिस्क युद्ध का नहीं ले सकता, क्योंकि लड़ाई लड़ने की क्षमता दिखाना या युद्ध तक की तैयारी दिखाना अलग बात होती है और युद्ध करना अलग बात होती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। इसके परिणाम वो भी हो सकते हैं कि शायद किसी विदेश को शुरुआत कहीं ना कहीं जीरो से भी करनी पड़ सके। व्यापारिक दृष्टि की बात करें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आयात निर्यात पर ही ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है। कई बार हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जब बात आती है व्यापार की तो फिर मसला बहुत ही हल्के से शांत भी हो जाता है। अब देखना यही होगा कि आगे क्या होता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।